أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری چوتھی کلاس ہے، یعنی لیسن نمبر 4 ہے ہمارا۔ 3 لیسن ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور مجھے امید کرتی ہوں میں کہ جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ لکھنے کی پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد آپ جو ہے نا لکھنا سیکھ جائیں گے اچھی طرح سے۔ تو آج میں آپ کو سکھاؤں گی اسم کی اقسام باللحاظ عدد۔ اسم کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ نون کو کہتے ہیں اسم، ٹھیک ہے؟ تو عدد کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام، یعنی ٹائپ آف ناؤنس اکارڈنگ ٹو نمبر، ٹھیک ہے؟ تو ٹائپ آف ناؤن جو ہے اکارڈنگ ٹو نمبر یہ 3 ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی ہے واحد، واو الف اے دال، واحد۔ واحد ہوتا ہے سنگولر، ٹھیک ہے؟ انگلش میں سنگولر کو واحد کہتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جو، ٹھیک ہے، ایک چیز کو ہم واحد کہیں گے۔ ایک شخص ہے، ایک چیز ہے، اس کو ہم واحد کہیں گے، یعنی سنگولر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہم اس طرح لکھیں گے، اور جب اس کے ہم حروف بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ واو الف ہا، ٹھیک ہے؟ یہ واو الف ہے اور دال۔ ٹھیک ہے؟ پھر جب اسے ہم ملا کے لکھیں گے واو پورا آ جائے گا، پھر الف آئے گا، اور یہ جو ہے یہ ہاف آئے گی، یہ والی، اور یہ دال، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب ملے گا تو یہ بن جائے گا واحد، یعنی سنگولر، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسری قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں مثنیٰ، یعنی ڈوئل۔ مثنیٰ کو ہم کیسے لکھیں گے؟ میم سے نون اور یہ اور یہ کے اوپر چھوٹا سا وہ ایسے کھڑی زبر جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس طرح چھوٹا سا الف جیسے ڈال دیتے ہیں، تو یہ ہے مثنیٰ۔ ڈوئل جو ہوگا، ڈوئل کو ہم مثنیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی 2 چیزیں، 2 کتابیں ہو گئیں، اگر 2 لوگ ہیں، 2 لڑکے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اس کو عربی میں ہم کہیں گے والدن، ایک لڑکا ہوتا ہے، تو اگر 2 لڑکے ہوں گے تو ہم اسے کہیں گے والدانی، کہ 2 لڑکے، تو اس کو ہم کہیں گے مثنیٰ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اب ہم حرف دیکھ لیتے ہیں، اس میں کتنے حرف ہیں؟ میم ہے، سے ہے، ٹھیک ہے؟ سے ہے، پھر نون ہے، اور پھر یہ ہے، اور یا کے اوپر یہ چھوٹا سا ایسے الف ہے، چھوٹا سا، جس کو کھڑی زبر کہتے ہیں، مثنیٰ، ٹھیک ہے؟ یہ ہے نون کی دوسری ٹائپ جو ہے، پہلی واحد تھی، دوسری مثنیٰ، اس کو ہم ایسے لکھیں گے۔ جو تیسری قسم ہے نون کی، اس کو ہم کہتے ہیں جمع۔ جمع پلورل۔ تو جمع کے ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں کتنے حروف ہیں؟ جیم، میم اور عین، 3 حروف ہیں۔ تو جب ہم لکھیں گے جیم ہم ہاف ڈالیں گے، جیم، اور پھر میم کا ہاف، اور عین پوری، ٹھیک ہے؟ جیم میم عین،
जमा, ठीक हो गया। प्लूरल को जमा कहते हैं, प्लूरल। हाँ प्लूरल। अच्छा, ये जो जमा होती है ना, इसकी भी आगे दो अकसाम हैं, यानी दो किस्में हैं, ठीक है। सिंगुलर, ड्यूल और प्लूरल, वाहिद, मुसन्ना, जमा। और आगे फिर उसकी भी जमा की भी दो अकसाम होती हैं। वो कौन सी होती हैं, वो मैं बताती हूँ। एक होती है जमा सालम, जमा सालम, ठीक है। इसको कहते हैं साउंड प्लूरल, ठीक है। जमा सालम को साउंड प्लूरल कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इसकी क्या निशानी होती है, जब हम इसको जमा बनाते हैं ना, इसके अल्फाज कैसे होते हैं। पहले तो हम लिखते हैं सालम को हमने कैसे लिखना, जमा हमने लिखना सीख लिया। अभी हम देखेंगे कि सालम, सालम में कौन से हरूफ हैं। सीन है और ये अलिफ है, अलिफ, ठीक है। और ये लाम है, लाम। और ये है मीम, ठीक है। एक मिनट, टेढ़ा हो गया तो ठीक, मीम, ठीक हो गया। सीन अलिफ लाम मीम, सीन अलिफ सा लाम और मीम, सालम। और जब लिखेंगे तो पहले सीन का ये हिस्सा लिखेंगे, उसके साथ अलिफ को मिला देंगे, इस तरह हो जाएगा। फिर लाम और फिर ये मीम पूरा, ठीक है। तो ये बन जाएगा सालम। और जमा सालम में दो होती हैं जमा, एक होती मुअन्नस और एक होती है मुज़क्कर, ठीक है। और इन दोनों की अलग अलग वो होती हैं, अलामात होती हैं। फिर हम कुछ लफ्ज लिखने सिखाऊंगी मैं आपको। जैसे जमा सालम के अल्फाज इस तरह से होते हैं, जैसे ये मैं लिखती हूँ, आप बताइएगा कि ये क्या है, ठीक है। ये क्या है, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन क्या है। मुस्लिमुन, ये आपको क्या लग रहा है कि ये एक मुसलमान है, तो इसको हम क्या कहेंगे। ये मुस्लिम। वाहिद है, ये वाहिद है ना, सिंगुलर जी है, हाँ। ठीक है ना। इसको हम कहेंगे वाहिद। तो ये हो गया वाहिद। अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक मुसलमान, ठीक है। तो ये है वाहिद। लेकिन अगर मुसलमान। मुस्लिमानी, ओके। मुस्लिमानी, ये है दो मुसलमान, दो मुसलमान। तो दो मुसलमान को हम कहेंगे मुसन्ना, ठीक है। ओके। अगर इस तरह लिखा होगा ना मुस्लिमानी, तो वो होंगे मुसन्ना, दो मुसलमान, ठीक है। ठीक है। मुसन्ना की निशानी है कि, मैं बताती हूँ, मुसन्ना की निशानी होती है, जैसे ये है मुस्लिमुन है ना, तो मुसन्ना में जी। हम क्या करेंगे, इसकी हम पेज को खत्म कर देंगे, ठीक है। इसको भी खत्म करके दोबारा लिखती हूँ। मुस्ली, और इसकी उसको तनवीन को हमने खत्म करके ऊपर एक जबर दे देना, ठीक है। और ये ऐसे रहेगा। इसके साथ हमने अलिफ और नून ज़ेरनी का इजाफा करते हैं, ठीक है। फिर ये बनेगा मुस्लिमानी, ठीक है। ठीक है। तो ये हो जाएगा मुसन्ना। दो चीजों के लिए जो इस्तेमाल होता है लफ्ज, उसको हम मुसन्ना कहते हैं, चाहे वो दो चीजें हों, चाहे वो दो लोग हों, ठीक है। और जो जी। दो से जो ज्यादा होती है ना, उसको हम जमा कहते हैं, ठीक है। और जमा के किस्मों में पहली किस्म जमा सालिम थी। और जमा सालिम की भी मैं आपको बताती हूँ कि जो इस तरह के लफ्ज किस तरह के लफ्ज होते हैं जो जमा सालिम होते हैं। जैसे
मुस्लिमूना, ठीक है, ये है जमा सालम है ये, ठीक है। कि इसकी निशानी क्या होती है कि वाव आता है, जज़म वाला वाव होता है यानी साकन होता है और नून के ऊपर ज़बर आती है, ठीक है। तो इस तरह इसमें मुस्लिमूना, अब इसमें देखें कौन से हरफ हैं, मीम है, सीन है, लाम है, फिर मीम है ये, फिर वाव और फिर नून, मुस्लिमूना। फिर इसको हमने कैसे लिखना है कि पहले मीम लिखनी है, फिर सीन, ये 1 मिनट, ये लाम जगह कम है तो लाम का हम हाफ हिस्सा लिखेंगे, मीम वाव और नून, मुस्लिमूना, ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। जो इस तरह की शक्ल के अल्फाज होंगे ना वो जमा सालम होंगे, जमा सालम मुज़क्कर होंगे, ठीक है। ये है निशानी जमा सालम की। और अब आपको ये तो थी जमा सालम मुज़क्कर, और दूसरी है जमा सालम की जो किस्म है जमा सालम मुअन्नस, ठीक है, फेमिनिन साउंड प्लूरल। तो उसको उसकी क्या कैसे लिखते हैं उसको, यानी आप कैसे पहचानेंगे? मुस्लिमातुन, इसके ऊपर तनवीन होगी, ठीक है। ये अगर जो अल्फाज इस तरह से लिखे होंगे ना तो वो होंगे जमा सालम मुअन्नस, ठीक है। ये ता है, ये 2 डॉट्स हैं, ठीक है। मुस्लिमातुन, इसकी निशानी होगी ये अलिफ और ता, ता के ऊपर 2 पेश होंगी। ये है जमा सालम की निशानी, जमा सालम मुअन्नस, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, ये तो थी जमा सालम की अक़साम थी कि एक मुज़क्कर साल मुअन्नस, मुज़क्कर थी जमा सालम मुज़क्कर, और दूसरी जमा सालम मुअन्नस। अब जो जमा की दूसरी किस्म है वो है जमा मुकस्सर। उसको हम कैसे लिखेंगे? जमा हमने लिखना पहले सीख लिया है, मुकस्सर मीम काफ सीन रे, मुकस्सर, ठीक है। इसमें कौन से हरफ है? मीम है, काफ है, सीन है और रे है, रे, मुकस्सर। जब हम इसका लफ्ज बनाएंगे तो मीम लिखेंगे, काफ हाफ लिखेंगे, सीन लिखेंगे और रे लिखेंगे, मुकस्सर। मुकस्सर होता है ब्रोकन प्लूरल, ठीक है, यानी टूटा हुआ। कि जो ये जो लफ्ज होता है ना इसमें वो टूट जाता है। वो कैसे टूटा हुआ होता है ये मैं आपको लफ्ज लिख के बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। जैसे पहले मैं लिखती हूँ, ये क्या है? ये तनवीन है, ऊपर 2 पेश है, किताबुन नहीं किताबुन। हाँ हाँ ठीक है, किताबुन ये वाहिद है, ठीक है ना। तो इसको जी जब इसके हम जमा बनाएंगे ना किताबुन की, तो इसकी जमा मुकस्सर बनेगी। वो कैसे? कुतुबुन, कुतुबुन, ठीक है। तो अब देखें इसमें लफ्ज की तरतीब बदल गई ना, जी हाँ कि काफ और ता तो वैसे रहा, अलिफ गायब हो गया। तो जमा जो मुकस्सर होती है उसमें होता है कि या तो कुछ अल्फाज की कमी हो जाती है, तो या उसमें कुछ अल्फाज का इजाफा कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जमा मुकस्सर, यानी कि ब्रोकन प्लूरल। यानी वो जो जमा सालम होती है उसमें तो पहला लफ्ज पूरा ही रहता है, आगे हम एक तो तनवीन खत्म करके वाव और नून लगाते हैं,
तो वो जमा सालम बनता है। लेकिन ये जो जमा मुकस्सर होता है, ब्रोकन प्लूरल होता है, उसमें जो होता है ना जो वाहिद होता है वो टूट-फूट जाता है, ठीक है? यानी उसकी तरतीब कायम नहीं रहती, उसकी तरतीब टूट जाती है, ठीक है? उसमें या तो हम कुछ लफ्ज़ नए हर्फ ऐड करेंगे या हम कुछ हर्फ कम कर देते हैं। जैसे एक और मिसाल आपको मैं लिख के दिखाती हूँ। कालामुन, ठीक है? कालामुन क्या है? कालामुन भी वाहिद है ना? तो पता इसको जब नहीं, हम जी, ये वर्ड ये मीनिंग ही कालामुन ये कलम कलम है ना, पेन है, ओके तो ये वाहिद है, ठीक है? ये वाहिद है। इसकी जब हम जमा बनाएँगे तो इसकी जमा बनेगी अकलामुन। कलामुन एक कलम, अकलामुन ज़्यादा ज़्यादा कलमे, ठीक है? तो इसमें हमने क्या किया देखिए एक अलिफ का इज़ाफ़ा कर दिया, एक हमने लाम के बाद अलिफ लगाया और फिर मीम। लेकिन जो जमा मुकस्सर होती है ना, इसका कोई रूल नहीं होता कि हमने इसमें अलिफ का इज़ाफ़ा करना है या हमने ये कुछ ना औज़ान होते हैं, उसके मुताबिक ये अल्फ़ाज़ बनाए जाते हैं, ठीक है? और ये ज़्यादा नहीं होते, इन अल्फ़ाज़ को जब आपको कोई अल्फ़ाज़ दिए जाएँगे ना, उसमें जो जमा सालम के पैटर्न पे नहीं होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जमा मुकस्सर है, ठीक है? तो इसके चंद औज़ान हैं जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं, तो उसके जो हम जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो हम वो वाले औज़ान पे जो अल्फ़ाज़ होंगे, उनको हम कोशिश करेंगे कि हम याद करें और लिखना सीख लें, ठीक है ना? जो ज़्यादा इस्तेमाल में होते हैं। लेकिन इसका आसान तरीका यही है कि जब आप को जो भी लफ्ज़ लगेगा कि ये जमा सालिम की इसमें कोई अलामत नहीं है, वाव नून आखिर में नहीं आ रहा, अलिफ और ता दो पेशतून नहीं आ रही, तो फिर वो लफ्ज़ जो होगा, वो ब्रोकन प्लूरल होगा यानी जमा मुकस्सर होगा। इस तरह आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है? अब हम कुछ और अल्फ़ाज़ लिख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि हमने किस तरह से पहचानना है कि ये जमा सालिम के अल्फ़ाज़ को। मुमिनुन, मोमिनुन एक मोमिन, ठीक है? और जब हम इसकी जमा सालिम बनाएँगे तो हम लिखेंगे मोमिनूना। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने हरूफ हैं। मोमिन में कितने हरूफ हैं? पहले मीम है, वाव है और उसके ऊपर हमज़ा है। फिर मीम है और फिर नून है। इस तरह से हमें पता चला कि इसमें 4 हरूफ हैं, ठीक है? फिर हम इसको मिला के लिखेंगे कि ये मीम मीम हाफ लिख देंगे, फिर वाव लिखेंगे, वाव ऊपर हमज़ा डालेंगे, फिर मीम हाफ, फिर नून। ठीक हो गया? मोमिन, एक मोमिन। फिर मोमिनूना, फिर वैसे ही हम लिखेंगे ये मीम है, ये वाव हमज़ा, फिर मीम, फिर नून, फिर वाव और फिर नून के ऊपर सबर। कितने इसमें कितने हरफ हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मोमिनूना में 6 हरूफ हैं, ठीक है? और फिर जब हम इसको मिला के लिखेंगे, तो वो तरीका हम सीख चुके हैं कि हाफ लफ्ज़ पहला लिखते हैं, मीम को लिखा, वाव पूरा लिखा जाएगा क्योंकि वाव को हाफ नहीं कर सकते, मीम हाफ लिखा जाएगा, नून भी हाफ लिखा जाएगा और वाव पूरा और फिर लास्ट जो हर्फ होता है, उसको हम पूरा लिखते हैं, तो नून पूरा लिखा जाएगा। लेकिन नून जब सेंटर में देखें नून दरमियान में आया तो हमने हाफ लिखा नून को,
لیکن جب آخر میں آیا تو ہم نے نون کو پورا لکھا کہ جب کوئی حرف آخری حرف ہوتا ہے کسی لفظ کا اس کو ہم پورا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم ایک مونس کا بھی لکھ کے اس کے بھی دیکھ لیتے ہیں. جی یہ کیا ہے؟ صادقۃ. جی صادقۃ, یہ ہے واحد. ٹھیک ہے نا, یعنی ایک جی. سچی عورت, یہ مونس ہے. ٹھیک ہے نا, تا مربوطہ جو ہے وہ علامت ہوتی ہے مونس کی, تو یہ ہے ایک سچی عورت. تو جب ہم اس کا جمع بنائیں گے تو وہ ہم کیا کریں صادقات. گے؟ جی ایسے صادقاتن. ٹھیک ہے, یہ تا پوری لکھنی ہے, یہ ادھر جگہ کم تھی تو اس لیے وہ چھوٹی لکھی گئی. ٹھیک ہے, پوری تا لکھی جائے گی لمبی والی, صادقاتن. تو یہ ہو گئی جمع سالم مؤنث. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جمع سالم مؤنث میں کیا فرق ہے اور جو واحد سے ہم نے کیسے بنانا ہے اس کو. یہ جب واحد کی جو یہ تا ہوگی یہ کھل جائے گی. ٹھیک ہے, اور الف, یہاں ایک الف لگے گا, ایڈ ہو جائے گا. الف لگے گا, اور تا دو پیش تن کا اضافہ ہوگا. باقی پورا دیکھیں, پورا لفظ ویسے ہی آ گیا صادقہ. ٹھیک ہے نا, اتنا ہم پورا آ گیا, لیکن اس کے آگے ہم نے یہ الف اور تا دو پیش تن کیا تو یہ ہو گیا صادقاتن, بہت ساری سچی عورتیں یا سب سچی عورتیں. ٹھیک ہے نا, یہ طریقہ ہے بنانے کا. اچھا, اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حروف دیکھ لیتے ہیں اس میں کون سے ہیں. صادقاتن کے حروف دیکھ لیتے ہیں. صاد, الف, دال, قاف اور تاء مربوطہ. ٹھیک ہے, یہ ہیں اس کے حروف. اور اس کے کیا حروف ہیں صادقاتن کے؟ صاد ہے, الف ہے, دال, قاف, الف اور تا پوری. ہاں, یہ حروف ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ تو حرکات ہے نا, جو زبر زیر پیش ہے یہ حرکات ہے. تو حروف اس کے اندر یہ ہیں صاد, الف, دال, قاف, الف, تا. ٹھیک ہے, تو آج کی کلاس میں ہم نے سیکھا کہ اسم کی قسمیں ہم نے لکھنی سیکھی کہ عدد کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں. 3 قسمیں لکھنی سیکھی ہم نے, واحد, مثنی اور جمع. اور پھر ہم نے سیکھا کہ جمع کی 2 اقسام ہیں, اور جمع کی 2 اقسام کو ہم نے لکھنا سیکھا, جمع سالم, جمع مکسر. اور جمع سالم کو ہم نے اس کے الفاظ کی پریکٹس کی, اور جمع سالم مؤنث کی. تو اب آپ کچھ اور پریکٹس کرنا چاہتی ہیں, کچھ اور الفاظ لکھیں. یہ جمع سالم کی میم, جی یہ جمع سالم ہے. جمع سالم کی ایگزامپل جیسے واحد تو کتاب ہوگا, اور اس کا سالم جمع جو ہے یہ کتابیں ہو جائے گا. نہیں, اس کی کتابیں نہیں ہوگا, اردو میں کتابیں ہوگا. ہم پڑھے عربی, عربی میں ہوگا کتبن. اچھا, کتابن, کتبن. ٹھیک ہے, اور کلامن کی جمع ہوگی اقلامن. اچھا, یہ تو مطلب مکسر میں ہوگا نا. ہاں جی, یہ مکسر میں ہوگی. ہاں, ابھی میں نے بتا دیا ہے اس کا طریقہ کہ جمع سالم کی کیا پہچان ہے, کہ جب واو اس کے آخر میں واو اور نون ہوگا, واو اور نون. ٹھیک ہے, واو جزم والا نون, وہ ہوگی جمع سالم. ٹھیک ہے, مذکر ہوگی. جیسے واحد اور مکسر میں یہ ہوگا, جیسے کافر تو اس کا ہوگا کفار, ہے نا. جی, وہ کفار جو ہوگا وہ جمع مکسر ہوگا. یہ علامات جو ہیں یہ جمع سالم کی ہیں, یہ مذکر کی
मुज़क्कर की और ये मुअन्नस की। जी ठीक है, जिन अल्फाज के तो ये आएगी जमा में, ये अलामत होंगी तो आप पहचान लेंगे कि ये जमा सालिम के अल्फाज है। ठीक है, आपको होमवर्क में मैं ऐसा ही देने वाली हूँ कि आप पहचान भी बताएंगे कि ये कौन सी है। ठीक है ना, ताकि आपको फिर साथ साथ ग्रामर की भी समझ आए ना, लिखने के साथ साथ थोड़ा सा आप उसको वो अच्छा करिए। मैम, इसके पहले वाला जो था आपने जो होमवर्क दिया है उसमें क्या ये हम लोगों को डिवाइड करके ही वैसे ही शो करना था? समझ में नहीं आया है इसलिए हम उसको किया जी नहीं जी, है। उसके मैंने हरूफ ही पूछे थे कि उसके हरूफ बनाए, तो ताकि आपको ऑलरेडी पता चल जाए। तो एक बार आप लिख करके दिखाई देती हैं, फिर उसको डिवाइड भी कर देती हैं, तो फिर हम लोगों को तो फिर आप लोगों को सिर्फ ना प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दिया जाता है ना, कि आप प्रैक्टिस भी थोड़ी सी कर लें लिखने की, ताकि आपके जब अपने हाथ से आप लिखेंगे ना, फिर आपके जहन में वो रह जाएगा ना, याद हो जाएगा आपको कि इसमें ये हरूफ है, तो फिर आप ज़बानी वो लफ्ज लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जिस तरह देखें हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम उसके पहले स्पेलिंग याद करते हैं, जब हमें वो स्पेलिंग याद हो जाते हैं फिर हम ज़बानी उस लफ्ज को लिख सकते हैं। और जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस लफ्ज में कौन कौन से हरूफ हैं, फिर हम उसको सही तरह से नहीं लिख सकते। क्योंकि जब देखे काफ, दो तरह का काफ, एक छोटा काफ होता है, एक दो नुक्तों वाला काफ होता है। ठीक है ना, तो लेकिन जब आप बोलते हैं तो उसका हम उसको गलत लिख जाते हैं कई दफा, प्रोनाउंसिएशन। काफ दूसरा होता है तो हम लिख जाते हैं डंडी वाला काफ लिख जाते हैं। तो इसलिए उसके स्पेलिंग जो होते हैं हरूफ को याद करना जरूरी। ठीक है ना, फिर आपकी जो है लिखना आपको इजी हो जाएगा और आप हर चीज लिख सकेंगे जब उसके हरूफ आप पाते हो। ठीक है ना। अच्छा, ये तो थी जमा सालिम की अलामत। और जो जमा मुकस्सर है उसकी कोई अलामत यानी नहीं होती, यानी उसका मैं ये नहीं बता सकती कि उसकी ये अलामत होंगी। उसका बस ये आपको याद रखना होगा कि जिस तरह वाहिद होता है ना, जैसे अभी मैंने मिसाल दी थी कलामुन की, चले आप दोबारा में, जैसे कलामुन हो गया। ठीक है ना, अब इसकी जो जमा आएगी उसको हमने याद करना है। ठीक है ना, उर्दू में तो हम कह देंगे कलमे। ठीक है ना, लेकिन हम पढ़े अरबी, तो अरबी में कहते हैं अकलामुन। अकलामुन, ये दो डॉट्स हैं। ठीक है, अकलामुन। ठीक है, ये अब इसकी निशानी क्या है कि इसकी जैसे वाहिद पे तनवीन है ना, तो जो इसकी जमा होती है ना उसके भी आखिरी हर्फ पर तनवीन आती है। एक ये पहचान है इसकी, इसको आप याद रख सकते हैं। जो जमा मुकस्सर होती है, एक तो उसकी तनवीन की अलामत होती है और एक उसके ना अक्सर अल्फाज के इस तरह भी होता है, अलिफ और हमजा पेश। कुछ के ये भी अलामत पाई जाती है कुछ अल्फाज की, जैसे अच्छा, ये अस्समाउ। मैम ये तो आप बता रही हैं इसका ना मुकस्सर का बता रही हैं ना? जी जी, मुकस्सर का, ये मुकस्सर तो का है। मुकस्सर में जैसे नबी अगर हम करते हैं तो नबीयुन तो नहीं होगा, ये तो अंबिया, अंबिया हो होगा। जाएगा। जी जी, हाँ अंबिया होगा ना, देखें ऐसे। नबियों तो हम उसमें करेंगे, उर्दू में भी नबियों लिख लेते हैं हम। ठीक है ना, और अंबिया उर्दू का लफ्ज भी है वैसे। ये देख, नबीयुन, ये है ना, नबीयुन। जी। तो इसको जब हम बनाएंगे अंबियाउ, अंबियाउ ऐसे करेंगे। ठीक है ना, यूं लिखेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें जमा सालिम की कोई अलामत नहीं पाई जाती। ठीक है ना, ना तो इसमें वाव नून है, ना इसमें अलिफ और ता पे तनवीन है, तनवीन वाली ता है। तो इससे हमें पता चला कि ये जो है ये जमा मुकस्सर है। अगर आप जमा सालिम की अलामत याद रख लेंगे ना, तो आपको जमा मुकस्सर पहचानने में आसानी हो जाएगी। कि अगर आपको मिक्स लफ्ज लिख दिए जाएं तो आप पहचान सकते हैं कि ये जमा मुकस्सर है। ठीक है जी। अभी मैं लिखती हूँ आबिदुन। ठीक है, जी। ये है आबिदुन। तो इसका हमने बनाना है जमा मुकस्सर, तो ये बनेगा इबादुन। अच्छा। ठीक है,
इबादुन। अच्छा, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं उसकी जमा मुकस्सर भी बनती है और उसकी जमा सालम भी बनती है। जैसे हम इसका ये भी बना सकते हैं, जमा सालम भी बना सकते हैं, आबिदूना। अगर आबिदूना भी होगा फिर भी ठीक है। यानी कुछ अल्फाज मिक्स भी होते हैं कि उनकी दोनों ही बन जाती है, सालम भी बन जाती है और मुकस्सर भी बन जाती है। ठीक है। ठीक। जैसे अभी मैं लिखती हूँ, बैदुन। बैजुन, बैजुन क्या होता है? सफेद, वाइट। ठीक है ना। तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा? बैदाउ। ठीक है। अबियाज, अबियाज भी बन सकता है। तो ये इसका जमा मुकस्सर बनेगा। ठीक है। लेकिन जमा सालिम ज्यादा उसका बनता है, ज्यादा अल्फाज का। जमा मुकस्सर जो है ना ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम कुरानी का अरबी पढ़ रहे हैं तो उसमें ये है कि जो जमा मुकस्सर है वो कम है, ज्यादा नहीं है। तो जहां जहां भी हमें आएगा तो फिर हम इंशाल्लाह उसको पहचान लेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, अभी एक और लिखती हूँ। अच्छा, ये है मुशरी, मुशरिकातुन। कार्टून है या कतुन में? मुशरिका, काफ जबर का, ये का, ये अलिफ जबर तो है। नहीं है ना? अच्छा, नहीं नहीं, ये मुशरकत। जबर है ना, देखें। ये अच्छा। इस तरह भी लिख हम्म, लेते ना, इस तरह भी लिखते ना, हम्म, काफ है ना तो काफ जबर का, हम्म, पेशतन, मुशरिकातुन। इस तरह भी लिख सकते हैं, मुशरिकातुन। इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ इस तरह लिखा हाँ। जाता है। ठीक है, इस तरह नहीं अच्छा लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता अच्छा। है। तो इसका जब हम, ये है एक मुशरिक औरत। ठीक है ना। ये तो हमने पहचान लिया कि ताए मरबूता है, तो इस वजह से ये है मोनस। ठीक है। तो इसकी हमने अब जब जमा बनानी तो हम क्या बनाएंगे? जमा हम इस तरह बनाएंगे मुशरी ना। ठीक है, बोले। मुशरी, मुशरिकात। हाँ, मुशरिका, मुशरिकातुन। हाँ मुशरिकातुन, और ते पूरी आएगी। हाँ, ते ठीक है, खुल जाएगी। मुरबुता नहीं आएगी। तो ये बन गया मुशरिकातुन। अगर हम यहाँ अलिफ लगाते तो फिर हम ये नहीं लगा सकते थे ना। तो इसको इस तरह लिख रहे हैं, मुशरिक से मुशरिकातुन हमने बनाया ना। तो ये था मुशरिक। ठीक है। तो मुशरिक उसको हमने बनाया ता लगा के, मुशरिकातुन। ठीक है ना, ये बना लिया। तो इसकी जमा सालिम हो गई मुशरिकात। तो इसमें कौन कौन से हरफ है? मीम है, शीन है, रे है, रे है, काफ, काफ है, अलिफ ता। और ते, पूरा ते है। ठीक है। हम्म, ये वाहिद की ते जो होती है वो खुल जाती है, ता मरबूता खुल जाती है, लंबी ता बन जाती है। ठीक है। लेकिन उसकी तनवीन वैसे ही रहती है। जो वाहिद, जिस तरह वाहिद पे तनवीन होती है इसी तरह जमा पे भी तनवीन होती है, जमा सालम में, जमा सालम मोनस में। ठीक है, ये आपने याद रखना। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो है वो समझ आ गया होगा कि आज का भी मुश्किल नहीं था, कुछ लफ्ज मुश्किल थे जो आपको याद करने पड़ेंगे, नए लफ्ज, जैसे जमा सालम, जमा मुकस्सर, वाहिद जमा तो आपने उर्दू में भी पढ़े हुए हैं। जी मैम। चलिए अब हम दुआ पढ़ लेती हूँ, फिर हम अगर कोई और बात करनी होगी तो फिर हम उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।